نئے سال کی جو اہمیت ہے مسیحیوں کے لیے فرق ہے. پہلی بات کہ ہم گزرے ہوئے سال کی شکر گزاری کرتے ہوئے توقعات کے ساتھ اور خواہشات کے ساتھ اور خدا کی رہنمائی کے لیے نئے سال میں داخل ہوتے ہیں. تو کرسمس کا جو بعد آخری ہفتہ ہوتا ہے اس کو اس ویک آف ریفلیکشن کہتے ہیں. خاص طور پر جو مسیحی حلقے ہیں ان میں غور و خوض دھیان کیا جاتا ہے. گزرے ہوئے ایام میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور نئے آنے والے سال کے لیے توقعات اور گول سیٹ کیے جاتے ہیں. کرسمس کا بعد جو آخری ویک ہوتا ہے یہ خاص میڈیٹیشن کا وقت ہوتا ہے جس میں غور کیا جاتا ہے خدا کی نعمتوں پر بخششوں کے لیے اور پھر اس سے توقعات جو ہیں وہ مسئلہ کی جاتی ہے. چند لوگوں کے لیے میں جو ہسٹری ہے نئے سال کی وہ بیان کروں گا کہ اس کا آغاز کیسے ہوا اور ہم کس پوائنٹ آف ویو سے یہ نقطہ نظر سے مناتے ہیں. دنیا جو سیکولر ہے وہ اسے کیسے مناتی ہے. تو جو کیلنڈر ہے ابھی ہم اپنے گھروں سے 2025 کا جو کیلنڈر ہے اس کو اتار دیں گے اور 2026 کا کیلنڈر جو ہے اس کو اویزا کریں گے. کیلنڈر ہماری زندگی میں بہت اہمیت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم آنے والے پروگرام اور ڈیٹیل تاریخ ہوتی ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں. تو جو دو کیلنڈر جو ہیں وہ دنیا میں رائج ہے. ایک ہے لونر کیلنڈر جو کہ چاند کے حساب سے اور ایک سولر کیلنڈر ہے جس کو لونر کیلنڈر قمری اور لونر جو ہے سولر کیلنڈر وہ شمسی کیلنڈر. جو لونر کیلنڈر ہے اس کا چاند کی جو تاریخ ہے چاند کے نکلنے سے اور پھر اس کے ختم ہونے اور پھر دوبارہ سے نمودار ہونے کے وسیلے سے مہینوں کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے. تو بہت پرانا یہ طریقہ کار ہے جو رائج ہے اور اس میں کچھ جو ایام ہیں مخصوص موسم میں نہیں آتے جیسا کہ آپ اکثر مشاہدہ کرتے ہیں جو چاند کے حساب سے مہینے مقرر کیے جاتے ہیں. جیسا کہ جو ابھی رمضان آئے گا کبھی دسمبر میں آتا ہے کبھی جون میں ہوتا ہے کبھی گرمیوں کے موسم میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا تعین جو ہے چاند کے نظر آنے پر ہوتا ہے. تو جو لونی سولر کیلنڈر یہ یہودیوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا آغاز تو جو ہے وہ چاند کے نکلنے سے ہوتا ہے لیکن کچھ اس میں حصہ جو ہے وہ سورج کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے طے کیا جاتا ہے. تو شروع وہ چاند کے نکلنے سے ہوتا ہے اور پھر ختم جو ہے اس کو موسم ایک مہینہ جو ہے وہ مخصوص موسم میں ہے اس میں کچھ جو تبدیلیاں ہیں وہ کی جاتی ہیں. تو جو سولر کیلنڈر ہے وہ زمین جب سورج کے گرد گھومتی ہے اور اپنا چکر ایک جو سالانہ طور پر مکمل کرتی ہے اس کے حساب سے مقرر کیا جاتا ہے. اور یہ کیلنڈر جو ہے مسیح خداوند سے 50 سال پہلے جو رومی شہنشاہ تھا جولیس کیسر اس نے اس کو جو ہے وہ رائج کیا تھا اور جب تک ان کی حکومت رہی یہ کیلنڈر جو ہے چلتا رہا. اس کیلنڈر میں جو مہینے ہیں وہ بھی ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہیں. جیسا کہ جنوری کا مہینہ جو ہے وہ جینس دیوتا کے نام سے ہے. جینس دیوتا ان کے مطابق اس کے دو منہ ہوتے ہیں. وہ آگے بھی دیکھ سکتا ہے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے ماضی میں بھی جانتا ہے اور مستقبل میں اور بھی اس کی نظر ہوتی ہے. تو اس لیے جو جنوری ہے وہ جینس دیوتا جس کو شروعات کا دیوتا کہتے ہیں. تو جہاں آفیشیل جو رومی حکومت میں کوئی بھی آفیشیل اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سنبھالتا تھا تو نئے سال کے آغاز پر تو 1510 میں جو پوپ تھے گریگری ہشتم انہوں نے اس میں کچھ امینڈمنٹ کی کیونکہ اس میں پہلے شروع میں جنوری
महीना नहीं था। फिर उन्होंने इसको साइंसदानों के साथ मिलकर जो है वो मुरतब किया ताकि क्रिसमस फिक्स डेट पर है और ईस्टर जो है वो भी मखसूस आयाम में जो है यहूदियों की ईद फसह के मुताबिक है। तो आज तक जो अभी दुनिया में राज है वो ईस्टरी कैलेंडर मसीह खुदावंद की पैदाइश से जो सब कुछ शुरू किया गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे कहते हैं, और इसमें जो है अब दुनिया भर में जितना भी सिस्टम चल रहा है, तारीख, दिन, सेकंड, मिनट, वो उसी इसी जो कैलेंडर है इसकी मुनासबत से चल रहे हैं। और उन्होंने 1517 में इस नए साल को मसीह खुदावंद के खतना की ईद के तौर पर जो है वो मुकर्रर किया, द फीस्ट ऑफ सर्कमसिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज तक उनको 200 साल लगे इस सिस्टम को राइज करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आज तक जो मसीही नए साल का आगाज करते हैं वो 1 जनवरी मसीह खुदावंद के खतना की ईद की ज़ियादत के तौर पर मनाते हैं। तो जैसा कि कलाम मुक़द्दस में से हमने पढ़ा कि मसीह खुदावंद की पैदाइश के एक हफ्ते के बाद उसको हैकल में जब पेश किया गया तो उसका नाम भी यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले बताया था, और उसका मिशन भी जो था। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि फिर उसका यीशु नाम रखा गया। इसका मतलब क्या है? निजात देने वाला। और फिर उसने निजात अपने लोगों को दी भी, ये रिडीमर, यानी अपने लोगों को छुटकारा दिलाने वाला, वो ऐसा निजात दहिंदा जो चीजों को उसकी असल हालत में वापस लाता है। इसका मतलब ये है तो हम यीशु मसीह ने अपने नाम की तरह जो है काम किया। और खुदा की जो परवरदिगारी है, हम देखते हैं कि यहूदियों में जो बच्चा पैदा हुआ था 8 दिन के बाद उसका खतना किया जाता था। तो मसीहियों के साथ दुनिया भर में लोग बिलवास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो हम यीशु मसीह के खतना की ईद को मनाते हैं। आज नया साल में खुशी मनाई जा रही है, बगैर मकसद कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन अब वो अल्टीमेटली मना रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जश्न मनाता है और सारा सिस्टम जो दुनिया का है उस कैलेंडर से जुड़ा हुआ है। आज हम भी नए साल 2026 में जो है वो दाखिल हो गए हैं। तो कलाम मुक़द्दस में से जो वाला पढ़ा गया है पैदाइश की किताब में से, खुदावंद ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा था, और जितने भी कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं अहद बांधे गए हैं पैदाइश की किताब में, खरूज की किताब में और यशायाह की किताब में, उन सब में निशान जो है वो दिए गए हैं। मसलन पैदाइश की किताब के 9वें बाब में नूह के साथ खुदा ने अहद बांधा था और उसका निशान था मौसे का कमान। फिर 15वें बाब में खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा था कि मैं ये इलाका दरियाए फरात से दरियाए मिस्र से फरात तक तुझे दूंगा, और उसका भी खुदा ने इसके साथ अहद बांधा था। फिर खरूज में जो है मूसा के साथ खुदा ने अहद बांधा। फिर आगे गिनती की किताब में 18वें बाब में है कि नमक का अहद हारून काहिन के साथ खुदा ने बांधा था। और फिर यशायाह कहता है कि खुदा 62वें बाब में इस्राएल के मुखालिफिन के खिलाफ खुदावंद इस्राएल को पता देने के लिए अहद बांधेगा। तो जितने भी अहूद हैं, जितने भी अहद हैं, उनमें खुदा निशान जाहिर करता था। और खुदावंद ने इब्राहिम से अहद बांधा, और वो अहद था कि तुम में से हर एक फर्जंदे दरिया का खतना किया जाएगा। तो खतना जो अहद का निशान था, इसी मुनासबत से मसीहियों के साथ भी जो है अहद है। कौन सा? बपतिस्मे जो ईमान लाए। उसी खुदावंद ने 28वें बाब मत्ती की इंजील, सब कौमों में कल इंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए उसको बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो और उसको मसीहत में शामिल करो। तो खतना यहूदियत में शामिल होने का निशान था, यानी अपने दुनियावी इंसानी कामों को मुर्दा करना, आजाद हो, और खुदावंद के साथ रूहानी तौर पर जो है वो पेवस्ता होना। तो जो अहद है बांधा गया उसके ताबे रहते हुए, खुदा की पाक मर्जी को पूरा करते हुए, वहां पर लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम से अहद बांधा, और मसीही जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ अहद में जो वसीला से जो है खुदा की बादशाही के वारिस होने के लिए शामिल होते हैं। तो कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो अहद होती हैं।
जो नए साल की अहमियत है कि खुदावंद ने एक और नया साल हमें बख्शा है, और आज के दिन यहूदी दस्तूर के मुताबिक मसीह खुदावंद का जो है वो नाम रखा गया, जो फरिश्ते की जुबानी उस तरह हमें पढ़ने से पहले आसमानी नाम जो है उसको जमीनी जो है हकीकत जो दी गई है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद अपने अहदों को याद रखता है और फिर भूलता नहीं है, लेकिन जिनके साथ अहद बांधा जाता है वहां पर लिखा है कि अगर वो अहद में साबित कदम न रहे तो फिर वो काट डाले जाते हैं। उसमें सारे अहद की बदौलत कायम न रहते थे, फरमाबरदारी वफादारी इसकी शराइत। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम सब जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नए में शामिल हुए हैं, उन पर कुछ जिम्मेदारियां। हमने अपने जिस्मानी मुर्दा कामों, पुरानी इंसानियत को उसी के साथ खत्म करना है और नए सिरे से जो है खुदा का जलाल जाहिर करना है। जब हम 22 की किताब पढ़ते हैं तो उसके 10वें बाब में लिखा है कि मुर्दा मक्खियां अतार के अतर को बदबूदार करते हैं, यानी हमारे जो नेकी के काम होते हैं, थोड़ी सी हमाकत और अहमदपन जो है वो हमारे उन कामों को भी जो है वो बदबूदार कर देता है। तो 22 की किताब में इसे हम देखेंगे कि 22 कहता है कि जिंदगी एक मोमे की तरह, मोमे समझते पजल, और इंसान मुसलसल उसकी जुस्तजू में लगा रहता है लेकिन इसके हाल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि इंसानी अक्ल और शऊर महदूद है और खुदा के इलाही इंतजाम को इंसान अपनी अक्ल से समझ नहीं सकता। और आगे लिखा है कि उसने अबदियत को उनके दिलों में जागज़ीम किया ताकि वो खुदावंद की मर्जी के ताबे रहते हुए जो है वो हमेशा की जो जिंदगी है उसको भी हासिल करे और खुदावंद में कायम रहते हुए हिकमत को हासिल करे। तो 22 की किताब और उसके बाद इंसान की किताब में लिखा है कि खुदा हिकमत अता करता है और हिकमत जो है वो लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनाहगार बहुत सी नेकियों को बर्बाद कर देता है। तो आज जो साल नौ 2026 है उसमें हमने उसी के साथ अहद में कायम रहते हुए अपने उन अज़ाब जो नाराजगी के हैं मुर्दा करते हुए खुदा के साथ आस्ते नौ अपना जो ताल्लुक है उसको कायम करना है। तो कलाम मुकद्दस में से एक हवाला जो हम हर साल पढ़ते हैं, आज नहीं पढ़ा, वो लूका की इंजील का 13वां बाब है। एक बागबान है, वो मालिक कहता है कि अंजीर का ये दरख्त फल नहीं दे रहा, इसको काट डाल। बागबान कहता है कि खुदावन एक साल इसको और दिया जाए, मैं इस पे मेहनत करूंगा, इसके गिर्द हालात रखूंगा, खाद डालूंगा, अगर ये इसने फल नहीं दिया तो फिर इसे हटा देगा। तो जो मसीही ईमानदार हैं उनकी जिंदगियां फलदार होनी चाहिए। तो यीशु मसीह यूहन्ना की जिंदगी में कहते मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होगा, तुम बहुत सा फल लो, यानी इंसानी मुर्दा कामों को छोड़ो और खुदावंद में पाक के वसीला से कायम रहते हुए दुनियावी ख्वाहिशों पर गुनाहगार इंसानियत पर गालिब आकर अपने बदलों से खुदा का जलाल जाहिर करें। अब बहुत सारी बातें जो हम सोचते हैं कि हम कैसे इसको असेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से काम हैं जिनसे हमें नफरत करनी है। तो मरकज़ की इंजील उसका 7वां बाब, वहां पर लिखा हुआ है कि बदन के जो काम हैं वो क्या है और कैसे हमने पाक रूह के वसीला से रूह के फलों को जो है अपनी जिंदगी से नुमायां करना है। मरकज़ की इंजील मेरे साथ निकालिए 7वां बाब, बीसवीं आयत में, फिर उसने कहा जो कुछ आदमी में से निकलता है वो इसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, ज़नाकारियां, लालच, बदी, मकर, शैवपरस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं और ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होते। मुकद्दस पौलुस रसूल गलतियों के खत में लिखते हैं कि रूह के फल कैसे हम जाहिर कर सकते हैं, कैसे रूह के फल जो है
एक अच्छे मसीही ईमानदार की पहचान बनते हैं। और वो कहते हैं कि अगर हम जिस्म के मुताबिक चलते हैं तो फिर गलतियों के नाम पर कैसे हमने जिस्म के ख्वाहिशों पर गालिब आना है। मगर मैं कहता हूं कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे की मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत की हिदायत नहीं रहे, अब जिस्म के काम तो जाहिर है। अगर कोई ऐसा काम जो इन कामों में हमारी जिंदगी में पाया जाता है या हम महसूस करते हैं कि काम मेरे वसीला से हो रहा है, तो जिस्म के काम कहते हैं कि जिस्म के काम जो है वो रूह के कामों पर गालिब आ जाते हैं और फिर आखिर जो है हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। तो काम सुनिए जरा। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हस्त, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदअतें, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर बता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल, अगर हम रूहानी हैं और मादरूह के वसीला से नए बने हैं, तो फिर रूह के फल जो हैं हम खुद अपनी आइडिया लगा सकते हैं, तजजिया कर सकते हैं कि हम अगर रूह के फल हमारी जिंदगी में नुमाया है तो हम रूहानी हैं। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बत और ख्वाहिशों समेत सलीब पर फेंक दिया। और कलाम मुक़द्दस में आगे लिखा हुआ है 6वें बाब में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। नई शरीयत है और उसने बताया जो मसीह की शरीयत है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले। एक दूसरे का भार उठाओ, ये वेट नहीं है, इसकी मीनिंग एक दूसरे की जो एक दूसरे को माफ करो, भार उठाओ उसको तसल्ली दो। अगर कोई गुनाह की हालत में है उसे तसल्ली दो, और अगर कोई आपका खता कर रहा है तो उसको माफ करो। मसीह की शरीयत ये है, रोतन और हलीम बनकर। तो हम अपने जिंदगी का मुहासबा करें। लूका के इंजील में 15वें बाब में दूसरा बेटा जब अपना सारा माल मता उड़ा देता है तो फिर वो पछताता है। तो तौबा जो है दर्द से पछताना, अपने कामों पर, अपने रवैये पर। तौबा का जो मतलब है यूनानी का लफ्ज़ उसमें तो ना है ख्यालों, सोचों और रवैयों की तब्दीली। और तौबा की तौफीक कौन देता है? बिल्कुल जो हानि है रूहानी फलों से ममरूद रूह बिल्कुल हमारी जिंदगी में काम करता है, तौबा की तौफीक बख्शता है। और जब हम गुनाह को गुनाह समझना शुरू कर देते हैं तो फिर एहसास गुनाह हमें तौबा की तरफ माइल करता है। तो तौबा जो है वो हमें बदियों पर, बुराइयों पर, जहालत पर, अंधेरे पर आगरू हमारी जिंदगी में बसना शुरू कर देते हैं, जो गालिब आने की कुव्वत बख्शता है। अगर हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, खुद एहतसाबी इसको कहते हैं, अपने आप का हिसाब करें कि हम कहां पे खड़े हैं। जिस्मानी काम हमारी जिंदगी से नमदार है, ये रूह के फल। और जब तक लिखा है कि जो दादी फल नहीं लाती वो काट डाली जाती है। अगर गुज़श्ता 2025 में 24 में हम खुदा के साथ वाबस्ता और वाबस्ता रहकर अपनी जिंदगी से रूह के फलों की मामूली की सूरत में जाहिर नहीं कर सकते, तो अभी खुदा ने एक और मौका दिया जीत के दरख्त की तरह कि हम मादरू जो हमें तौबा की तौफीक बख्शता है, अपनी पुरानी गुनाह इंसानियत को छोड़े और खुदा के साथ अस्तिरे नौ अपने दौलत को जो है वो कायम रखें। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये आखिरी जो हफ्ता है ये डिटर्मिनेशन रिफ्लेक्शन है, जायजा ले अपने आप कि हम कहां पर खड़े हैं, ताकि आने वाला जो सारे नौ है, अगर हमारे में कमी है, कमजोरी है और जिस्मानी काम जो है गुनाह की सूरत में हमसे सरजद होते हैं, तो खुदा ने एक और साल हमें नया बख्शा। तौबा की तौफीक खुदा हमें बख्शे, रूह खुद हमारी जिंदगी में काम करे
اور ہم سب کو توبہ کی توفیق بخشے تاکہ ہم خداوند کی پاک مرضی کے مطابق چلتے ہوئے اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں. خداوند اسلام کی وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے. دعا کریں. زندہ رضوی خداوند، آپ تیری لازوال محبت کے لیے، تیری ان گنت نعمتوں برکتوں بخششوں کے لیے